नमस्कार। वक्त के सांचे में अपनी जिंदगी को ढालकर वक्त के सांचे में अपनी जिंदगी को ढालकर हंसते रहो जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में आज इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक बहुत ही जाना माना नाम है उनका फोक आर्ट में। शी इज अ फोक सिंगर, शी इज फोक आर्ट एक्टिविस्ट, शी इज अ राइटर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुखी बरार जी का। बहुत बहुत स्वागत सुखी बरार जी का आपका। थैंक यू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਜਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੋ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਔਰ बहुत बहुत प्यार सत्कार। क्या बात, क्या बात। हमारे साथ शोभा आहूजा जी जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शोभा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इट्स प्रिविलेज फॉर अस कि हमारे साथ इतनी अजीम शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ी हैं। सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी, निर्देशक, लेखक। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लिखते हैं मैरी क्रिसमस टू एवरीवन ऑन द शो। मैरी क्रिसमस सुभाष सर आपको भी। तो हमारा जो पहला सवाल रहता है जो सभी शख्सियतों से होगा वो यही है कि आपकी जो यात्रा रही है कला के क्षेत्र में वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है और खास तौर पे जो न्यू जनरेशन है, न्यू परफॉर्मर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो मैं चाहूंगी कि आपका जो सफर है हम भी उसका हिस्सा बने, आपकी जो कला का सफर है हम भी उसका हिस्सा बने। ਕਾਜਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਟਰੂਥ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਬਠਿੰਡਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿੱਥੇ ਫੋਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦੈਟ ਏਰੀਆ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਕਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਆਈਐਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਈਪੀਐਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਨੂਨ ਸੀ ਔਰ ਕੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੂਮੈਨ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਏਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਈ ਜੁਆਇਨਡ ਦੇਅਰ ਐਮਏ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮਾਈ ਫਸਟ ਮਾਸਟਰ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਜਨੂਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਡਾਂਸਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਐਮਏ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਗਾਇਕਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਤਫਾਕਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਨੂਨ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫਿਸਰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀੜਾ ਪਨਪ ਪਿਆ ਅੰਦਰ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਜਿਵੇਂ ਵਡਾਲੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਫਿਸਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਆਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਉਣੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਾਉਂਗੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬੁੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੀਤ ਗਾਏ। 1992 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੈਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਨਵੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡੋ ਅਫਸਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਓਪਨਲੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫਿਰ ਗਾਇਕੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆਲਸੋ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ because I am devoted to my mother language. I am devoted to the rich heritage of Punjab. ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ I sing all cultural songs. क्या बात,
क्या बात! दिस ये इज अपने माई आप में जर्नी, दिस इज माई। यस, हाँ। ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, खासतौर पे जो नई जनरेशन है, क्योंकि कला का रास्ता, जिस तरह से सुखी जी ने बात की कि कला का रास्ता बहुत आसान नहीं होता, कितनी मुश्किलें तय करके और कितना जद्दोजहद करके वो आज इस मकाम पर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए इंस्पिरेशनल बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, उन सभी को मैं वेलकम कहना चाहूंगी। जस किरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और लिखती हैं पंजाबी सुन के दिल खुश हो गया। थैंक यू जस किरण जी। सुरेंद्र गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू से जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं। हरजीत वालिया सर हमारे साथ जुड़े हैं। हरजीत वालिया ओ, सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत थैंक श्री यू। अकाल जी, वालिया साहब नु सत श्री अकाल। हाँ, आपके लिए सभी लिखते सभी हैं सारा नु नमस्कार। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी उनको हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी का। रोहित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जस किरण जी लिखती हैं लुकिंग टुवर्ड्स ए लवली म्यूजिकल इवनिंग। बिल्कुल, जब हमारे साथ इतनी खूबसूरत और बेहतरीन आवाज की मलिका बैठी है, तो जाहिर सी बात है कि म्यूजिक तो सुना ही जाएगा। और वो भी जो फोक है, ट्रेडिशनल फोक है। आज हम वे सो लकी कि हम आज सुखी जी से ट्रेडिशनल फोक सुनेंगे। और गुलशन वालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। एक बेहतरीन रंगकर्मी है, टेलीविजन सिनेमा से उनका नाता है। जय नारायण जी लिखते हैं कि पंजाब सांस्कृतिक स्टेट है। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत आपका। अशोक कल्याण जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो अभी हम जर्नी को आगे रखते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि कुछ हम पहले आपसे जरूर सुने। बिल्कुल जी, क्योंकि अज पवित्र दिहाड़ा है माता गुजर कौर जी का ते चारे साहबजादियां दा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੀ। ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਚੰਨ ਚੰਨਾ ਚੋ ਚੰਨ, ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਚੰਨ ਚੰਨਾ ਚੋ ਚੰਨ, ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਚੰਨ ਚੰਨਾ ਚੋ ਚੰਨ, ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਚੰਨ ਚੰਨਾ ਚੋ ਚੰਨ ਚਮਕੀਲਾ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਬਾਜ, ਸਜੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਤੇ ਘੋੜਾ ਨੀਲਾ ਬੜਾ ਫਰਤੀਲਾ ਏ। ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਚੰਨ ਚੰਨਾ ਚੋ ਚੰਨ, ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਚੰਨ ਚੰਨਾ ਚੋ ਚੰਨ, ਗੁਜਰੀ ਦਾ। वाह वाह, ऐसी। बहुत खूब, बड़ा ही अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, खुद बेहतरीन सिंगर हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हरजीत वालिया जी लिखते हैं सत श्री अकाल, नाइस टू सी यू सुखी बरार जी। हमारे साथ रेट्स जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत। हम फोक की अगर बात करते हैं, तो आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी परफॉर्मेंस दी है फोक आर्ट को लेकर। तो अगर हम बाहर की कंट्रीज की बात करें, तो बाहर की जो कंट्रीज का जो अपना फोक होता है, उसको आप कहाँ देखती हैं, और जो हमारा ट्रेडिशनल फोक है उसको आप कहाँ देखती हैं? जो एज फार एज मैं इतने बाले बहुत देशों च मैं गई हाँ, अपने जो संस्कृति उन्होंने अपने फोक की प्रजर्व करके रखी है, वो अपने इंडिया च ਜਾਂ ਮੈਂ कह लो मैं पंजाब च ਉਹ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੇ ਗਿਵ ਯੂ ਦਾ ਪੈਂਪਲੇਟਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ। बट इन पंजाब इन इंडिया, क्योंकि अपना इंडिया बहुत सब तो वधिया कंट्री जे मैं कहा हिस्टोरिकली, कल्चरली, सोशली, आर्कैलोजी तो पॉइंट ऑफ व्यू तो लै लो, तो इंडिया तो वध चंगा कोई नहीं है, कोई कंट्री इस तो सोहना कंट्री नहीं है। बट जिथों तक ये प्रचार ते प्रसार का सवाल है, जिन्ने कलाकार इन्हें पैदा किए, जो भी कारीगर पैदा किए, इन एवरी फोक फॉर्म आई कैन से दैट ਉਹ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੰਮੂ ਦਾ ਅੱਡ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप क्या कहेंगी?
क्या सजेशन मैं तो देंगे? मैं तो यही चाहूंगी, जैसे मैं तो एक सेंटर चला रही हूँ बहुत बड़ा, दैट इज वर्ल्ड पंजाबी हेरिटेज सेंटर। बिल्कुल, और बिल्कुल। हाँ, और मेरे को अफसोस है कि कहने में मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं है। लोग क्या करते हैं, गुरुद्वारों के नाम पे दान कर देते हैं, मंदिरों के नाम पे दान कर देते हैं। अरे अगर कला ही खत्म होगी तो कैसे मंदिरों में म्यूजिक बजेगा? कला के लिए कोई नहीं आता, आगे नहीं आ रहा कि जो कला को प्रमोट करते हैं, जो कलाकार है उनको भी डोनेशंस दें। ठीक है, उनको भी दें, ऐसे सेंटर चलाए जाएं। हर स्टेट में सेंटर चाहिए, कल्चरल ग्रुप होना चाहिए। क्योंकि कल्चर सिर्फ गाना कल्चर नहीं है, इट्स नॉट कल्चर के सुखी बराड़े जे सिंगर, इट्स ओनली जस्ट ए पार्ट ऑफ कल्चर। सिंगिंग इज यस। ए पार्ट ऑफ कल्चर। टोटल कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ, हाउ वी लिव द लाइफ, इट्स ऑल कल्चर। सो ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਕਾਜਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ सुचेत कर सकन। बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी बात और बहुत ही सही बात बोली है। बहुत सारे व्यूअर्स हम ये इसी बात को मान रहे हैं। शोभा आहूजा जी कहती हैं बिल्कुल सही बात। संध्या गुप्ता जी हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हैं, खुद उनका एक बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर में, लिखती हैं बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। जसकिरण चोपड़ा जी कहती हैं बहुत सही बात। किरण शिवपुरी जी कह रही हैं, खुद कलाकार हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, रंगकर्मी, कहती हैं बहुत सही बात। राजीव साहब कहते हैं बहुत सही बात। तो हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएँगे, लेकिन फिर से चाहेंगे लालच थोड़ा-सा कि कुछ और सुने आप। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕਾਜਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੀਤ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਅੰਜਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹੀ ਗੀਤ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੀਤ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ Song। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਗੀਤ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਗੀਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ। ਓਏ ਦਾ ਰੰਗ ਸੰਧੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ। ਓਏ ਦਾ ਰੰਗ ਸੰਧੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਲੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਓਏ ਦਾ ਰੰਗ ਸੰਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 4 ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਦਾਬ, नमस्कार, सलाम, रिगार्ड, शुभ क्षमा। युवराज शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, एक बहुत बड़ा नाम रंगमंच में। स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने पंजाबी में कुछ लिखा है। तो उनको बोलो सुनाए, जरूर सुनाए, मेरे को भी सुनाए। आपके आप पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे लिखा है, स्क्रीन पे आ रहा है आपके, अगर आ रहा है तो आप जरूर देखें। नहीं, वो ऐनक के बगैर नजर नहीं आ रहा। इरशाद हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, बहुत बहुत शुक्रिया। जसकिरण जी लिखती हैं बिल्कुल सही कहा युवराज सर आपने। हरजीत वालिया सर लिखते हैं कि बहुत खूब। सुरेंद्र गोयल जी कहते हैं वाकई बहुत खूब, इतना खूबसूरत आपने गाया, बिल्कुल पंजाब ले गई, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कोई खास बात, कोई खास याद, कोई सुनहरा अनुभव आपकी कला से जुड़ा हो। जिस तरह से आपने कहा कि कितनी मुश्किलें आपने की, लेकिन आपका जो लक्ष्य था उसको आपने नहीं छोड़ा। आपने जो करना था उसको करने की आपने ठानी, और आप एकलव्य की तरह अपने लक्ष्य को देखते रही, और आज आप यहाँ पे हैं। ये नई जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कोई ऐसी याद जो आप हमसे शेयर करना चाहती हैं, आपकी जर्नी से जुड़ी हुई। यादें तो रोज दिन एक याद बन जाती है, क्योंकि मेरी जिंदगी यादों में ही बसर हो रही है। क्योंकि ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਟੀਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਕਾਜਲ ਜੀ 2% ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਕੇ।
ਸਮਝ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਨੰਬਰ 2, ਜੋ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਸਟ। ਮੈਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 50 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਲ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਸੋ ਓਕੇਜ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਐਮਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰਮ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, education plays a great role in that all process. So मैं चाहनी है कि जो कला है इसको एजुकेशन के साथ जोड़ा जाए, देन कामयाब हो सकते हैं। इसको एजुकेट किया जाए, दिखाया ना जाए, एजुकेट किया जाए इसको। क्या बात, इतना खूबसूरत आप बोल रही हैं सुखी जी, मैं क्या कहूँ। जसकिरण जी केड़ी गल दी तारीफ करी है, वाकई केड़ी गल दी तारीफ करी ਤੁਹਾਡੀ। युवराज शर्मा जी लिखते हैं, मैंने लिखा, उन्होंने जो पंजाबी में लिखा था कि इतने दिनों बाद खालिस पंजाबी सुनकर रूह खुश हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया युवराज, बहुत बहुत शुक्रिया। जसकिरण जी लिखते हैं कि वाह जी वाह, पर्सन टू पर्सनैलिटी बहुत ही खूबसूरत। संध्या गुप्ता जी लिखते हैं कि लव योर थॉट्स, वाकई इतनी खूबसूरत, इतनी डिवाइन थॉट्स हैं। और शोभा आहूजा जी लिखती हैं कि पंजाबी और डोगरी सबसे मिठी भाषा है। वाकई डोगरी और पंजाबी बहनें भी हैं मिलती हैं आपस में पंजाबी और डोगरी। जिन्नियां अपने काजल जी, जिन्नियां लैंग्वेजेस ने, मैं सारियां भाषावां दा सत्कार करदी हां बहुत ज्यादा। बट जिस लैंग्वेज दे विच तुसीं पैदा होए हो, जिहड़ी तुहाडी मात भाषा, भावें पंजाबी है, भावें डोगरी है, भावें हिंदी है, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਡੋਗਰੀ ਸਾਡਾ ਮਾਸੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏजेस वी आर ऑल आर ए फैमिली। वाकई वाकई। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी है, लेखिका है, लिखती हैं बहुत ही बेमिसाल शख्सियत, मजा आ गया। मैं ये कहना चाहूंगी, अभी बात करें थी सुखी जी एजुकेशन के लिए 7 जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें शी हैज डन मास्टर्स, शी इज गोल्ड मेडलिस्ट इन स्टडीज एंड डॉक्टरेट इन फोक कल्चर ऑफ पंजाब। मतलब जिस तरह से इन्होंने बात की कि 7 लैंग्वेजेस, 7 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स, मुझे लगता है आप अकेली ही शख्स होंगी संगीत के क्षेत्र में जिन्होंने 7 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किया है। क्या बात सुखी जी। उसके बाद थैंक यू। जो यही मान वाली बात है कि मेरे को पता मैं कैसे गायिका बनी और कैसे अभी भी मैं ठानी हुई है, क्योंकि जो समाज है ना हमारा, खास करके हमारे जो जट लोग हैं, हम इनमें वो, मैंने बोला एक दफा का इंसिडेंट ही सुना देती हूँ। चलो, जब मेरा ये गीत रिकॉर्ड हुआ ना, इन्हों मैली ना करना मेरे पंजाब दी मिट्टी है, तो ये 96 च रिकॉर्ड होया सी। मैं उदों टेपा हुंदियां सी जिसमें वो कैसेट चलती थी, कैसेट। मैं अपने पिंड गई, जिला बठिंडा, और टेप रिकॉर्डर ले गई विच कैसेट पाके, ते मेरे ग्रैंडफादर तहसीलदार ही वाज, उदों जिउंदे सी। मैं उन्होंने गीत सुनाया टेप रिकॉर्डर ऑन करके, कहते इन्ना सोहना गीत, कहते वाह वाह वाह, कमाल हो गई। जदों मैं दस्से, मैं पता किने गाया, कहते किने, मैं गया, उन्होंने टेप ही भन्नती टेप रिकॉर्डर चला के मारी। सो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ बड़ी स्ट्रगल की है, बहुत ज्यादा। बट मैं डरती नहीं, परमात्मा की इतनी बख्शिश है। मैं कहती हूँ मैं पूजा पाठ करने वाली औरत हूँ, इतनी बख्शिश है मेरे को। ना तो अपनी उम्र याद है कि मैं कितनी उम्र की हूँ, मेरे को वही यूनिवर्सिटी वालिया जी बैठे हैं, मेरे को वही फीलिंग अब भी है मेरे सवार सिर पे।
अगर आप कला से जुड़े हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो, उम्र आमर कख नहीं याद रहता। सो कला, सुखी जी, हाँ, सुखी जी, कला जिंदगी है, कला इज लाइफ, आर्ट इज लाइफ। क्या कहूँ मैं स्पीच चुप हो गई आज, इतना अच्छा बोल रहे हो, मेरे तो गूज़बम्प्स हो गए। सुखी जी इतना खूबसूरत, तो वाक़ई इंस्पिरेशन है आप हम सबके लिए कि कितनी स्ट्रगल के बाद आपने छोड़ा नहीं उसको और आप पहुँची, वाक़ई हैट्स ऑफ टू यू। युवराज सर लिखते हैं, हुल्ले नी माईए हुल्ले दी बेरी पतरा चुल्ले, अगर संभव हो तो मेहरबानी करके सुना दें। केड़ा जी, मैं समझी नहीं। हुल्ले नी माईए हुल्ले दी बेरी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੀਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਕੋਈ। ठीक है, सुना और कोई सुना दें आप, हमें कोई और सुना दें। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਫੋਕ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ। हाँ, ਸੋ ਆਪਾਂ बिल्कुल, बिल्कुल। ਹਾਂ सटार्ट ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਗੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ हाँ, ਮੇਰਾ, सुंदर घोड़ा, हाँ, मैं सुना ਹਾਂ, है, बड़ा ਜਦੋਂ कमाल है। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਡੀਅנס ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੌਂਗ, इट्स ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग। तो ट्रेडिशनल सॉन्ग है, हाँ, ट्रेडिशनल है। ਵਣ ਵਣ ਪੀਲਾ ਪੱਕੀਆਂ ਨੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਏ ਮਾਏ, ਕੋਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਨੀ ਭਲੀਏ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਤੋਰ ਕੇ ਨੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਏ ਮਾਏ, ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਨੀ ਭਲੀਏ। ਅੱਗੇ ਮਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੜੀਆਂ ਗਿਣਦਿਆਂ ਦਿਨ ਗਿਆ ਨੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਧੀਏ, ਕੋਈ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦਿਆਂ ਰਾਤ ਨੀ ਭਲੀਏ। ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਕਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਨੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਮਾਏ, ਕਿਤੇ ਆਵੇ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਨੀ ਭਲੀਏ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਵੀਰ ਦਾ ਨੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਮਾਏ, ਕੋਈ ਮਗਰ ਮਜਾਜਣ ਹੀਰ ਨੀ ਭਲੀਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਰੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਭੈਣੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਨੀ ਭਲੀਏ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਸੱਸ ਦਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਵੇ, ਸੱਸ ਫਿਰ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ। ਸੱਸ ਦਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਵੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਿਆ ਵੀਰਾ, ਵੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕਰ ਆਵੇ ਭਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਣ ਚੋਰ ਨੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਭੈਣੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਹਾਜਨ ਲੋਕ ਨੀ ਭਲੀਏ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਹਾਜਨ ਲੋਕ ਨੀ ਭਲੀਏ। ਲਓ ਜੀ, इट्स अ ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग। कमाल, कमाल। मालविका जोशी जी लिखती हैं बेहतरीन रंगकर्मी हैं, आकाशवाणी नाटकों से जुड़ी हैं और लेखिका है, लिखती हैं बहुत ही सुकून है आपकी आवाज में, बिल्कुल। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं, वाह वाह, बहुत मन तृप्त हो गया, बड़ा ही जबरदस्त आपने गाया। शबीर मुजाहिद जी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं, कश्मीर से जुड़े हैं, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। संध्या गुप्ता जी लिखती हैं, नो वर्ड्स, जस्ट वाओ। जस किरण जी लिखती हैं कि तुसी रवा दिता, बिल्कुल तुसी रवा दिता। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी, आकाशवाणी के नाटकों से और फिल्मों से, रीजनल फिल्मों से और टेलीविजन से जुड़ी हुई हैं। सुरेंद्र गोयल जी लिखते हैं, बेहतरीन। जसकिरण जी लिखती हैं, सोलफुल, रूह तक पहुंच गया, वाकई वाकई बहुत खूबसूरत। हरजीत वालिया जी लिखते हैं, शी इज वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड अबव ऑल वेरी प्योर सोल। वाकई हरजीत वालिया सर, मैम तो बिल्कुल शी इज रियली अ प्योर सोल। जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ, जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, जो उनकी पॉजिटिविटी है वो हम तक पहुंच रही है। मंजू वजीर जो बेहतरीन क्लासिकल डांसर हैं, लिखती हैं बहुत खूबसूरत। युवराज से लिखते हैं, जो मैंने गीत बोला था वो लोड़ी गीत है, लोड़ी का अगर कोई गीत आप सुना दें। हाँ हाँ, लोड़ी का तो सुना देते, लोड़ी का सुना देते। लोड़ी का तो हमारे वही वही गीत एक ही चलता है, सुंदर मंदरिये हो तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला, दुल्ला ने धी भी आई,
ओ शेर शक्कर पाई माई दे पाथी तेरा पुत चढ़ूगा हाथी, माए दे पाथी तेरा पुत चढ़ूगा हाथी। माई ते साडे पैरां हेठ सलाइयां असी केड़े वेले दियां आईयां, साडे पैरां हेठ सलाइयां असी केड़े वेले दियां आईयां। बीबी दे लोड़ी तेरी जीवे जोड़ी, बीबी दे रोड़ी तेरी जीवे जोड़ी। ये तो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल ये है। हमारे जम्मू जम्मू में तो मांगने जाते हैं लोहड़ी ये गाना गा के। हर घर में लोहड़ी मांगने गाना गाते हैं, तब बड़ा मजा आ बिल्कुल रहा है बहुत। वाकई। बिल्कुल हाँ। अच्छा, अभी बात की आपने वर्ल्ड पंजाबी हेरिटेज फाउंडेशन जो आपकी है, तो इसके पीछे क्या सोच रही है आपकी जब इसके आपने पीछे फाउंडेशन बहुत बनाया? बहुत बड़ी सोच है जी। मैं 15 साल से चला रही हूँ, लेकिन एक्टिव मैं अब हुई हूँ 6 साल से। ਇਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਕਾਜਲ ਜੀ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਲੀਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡੂ ਕਲਚਰ, ਮੈਂ ਗੋਹਾ ਪੱਥਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲਿਪਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਕ ਆਰਟ, ਮੱਡ ਆਰਟ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, मैं रेत के मिट्टी के खिलौने भी बना लेती हूँ, दरियां भी बुन वाह लेती हूँ, नाले भी बुन लेती हूँ, वाह। कढ़ाई भी कर लेती हूँ, निटिंग भी कर, एवरीथिंग रिलेटेड विद वुमेन आई नो, कुकिंग भी कर लेती हूँ। तो जब यूथ फेस्टिवल पंजाब में होते हैं ना, हमारे यहाँ यूथ फेस्टिवल, तो अब उसमें क्राफ्ट कर दिया, फुलकारी निकालना, कटना, कत्तना, सारा कुछ। तो मेरे सेंटर में मेरे को कुछ नहीं पता, गाड़ियां खड़ी होती है, भीड़, मेरे को कोई पता नहीं किस कॉलेज की बेटियां आ रही हैं। मैं उनको सिखाती रहती हूँ, कोई निटिंग सीखने आता है, कोई कुछ, लेकिन मैं कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि जो आता मैं क्या, मेरी बेटियों फ्री ऑफ कॉस्ट मैं हर तरह का उनको लोकगीतों के कंपटीशन, हर तरह फ्री ऑफ कॉस्ट में लड़कियों को सिखा रही हूँ, सब कुछ क्या रिलेटेड विद कल्चर। क्या और बात, क्या बात। इसका यही है कि अब जगह ले रही हूं मैं फाउंडेशन के लिए, और सेंटर इंडिपेंडेंट खोलेंगे वहां कहीं खुला, और उसी की तर्ज पर सारे वर्ल्ड में, दिल्ली में भी खोल देंगे। आप चला लोगे? अच्छा, मेरे को पता चल गया आज, आप भी चला सकते हो। so और sweet, so बॉम्बे में तो privilege, मालिया जी है ही है। privilege है, privilege है, वाकई या privilege है। यू कैन नो डाउट। सबको हम हैं साथ में, बिल्कुल। यस यस यस। बाकी लिखती हैं, कमाल है आप, सो प्राउड ऑफ यू सुकी जी, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू वाकई। थैंक भारती यू। है ना, एक लेजेंडरी एक्ट्रेस है, जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है, लिखती हैं सूरत, सीरत और गायकी तीनों में बेमिसाल, वाकई। और शोभा जी लिखती हैं कि रब तानू खूब सारी मेहर बख्शे, वाकई बहुत मजा आ गया। युवराज सर लिखते हैं कि मेहरबानी। जसप्रीत जी लिखती है आपके गानों से तो मैं अमृतसर पहुंच गई, वाकई वाकई बिल्कुल सही कहा आपने, मजा आ गया। मैं चाहूंगी मिर्जा अगर आप सुना दें। हाँ मिर्जा, टप्पे सुनाओ उससे पहले एक दो। टप्पे, वाकई टप्पे, मजा आ जाएगा टप्पे तो। आप भी गाओ ना सारे साथ में। अभी अभी बालो मैया गाती हूँ थोड़ा, फिर मिर्जा भी गाएंगे बालो मैया। हट्टियां ते फीताई, हट्टियां ते फीताई, सच दस नी बालो कदे याद भी कीताई, सच दस नी बालो कदे याद भी कीताई। वे मैं खड़िया विच बेले, वे मैं खड़िया विच बेले, कसम खुदा दी माया याद करनिया हर वेले, कसम खुदा दी माया याद करनिया हर वेले। चिट्टे फुल ने कपावां दे, चिट्टे फुल ने कपावां दे, बहुतिया प्यारा वालिया इतबार की सावां दे, बहुतिया प्यारा वालिया इतबार की सावां दे। अगो जवाब कितना सोहना देखो। चिट्टे फुल ने कपावां दे, चिट्टे फुल ने कपावां दे, साजे ना साथ दिता, साजे ना साथ दिता, यारी मार के
ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਂਝ ਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਰੀ ਮਰ ਕੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਮ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਮ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ। चिट्टा कुकड़ बनेरे ते, एक कुकड़ बनेरे ते 100 साल हो गया, बनेरे ते तुरे फिरदे, उतरे ही नहीं थल्ले। चिट्टा कुकड़ बनेरे ते, सोहनी जेही बिंदी वालीए, काजल मैनू तो अज प्यारी लगन लग गई। ओ सोहनी जे दुपट्टे वालीए, मुंडा आशिक तेरे ते, काशनी दुपट्टे वालीए, मुंडा सदके तेरे ते। लो जी। मजा आ गया, मजा आ गया। हजीज से लिखते वाह वाह सदके जावा, वाकई हजीज वाकई वाह, बहुत मजा आ गया। नौरीन जी लिखती है वाह बहुत मजा आ गया, वाकई क्या कमाल का अंदाज, कमाल का अंदाज, इतना खूबसूरत। जसकिरण जी लिखती है वाकई मुंडा सदके तेरे थे, बहुत ही खूबसूरत। मजा आ गया। वो मैं हरजीत वालिया जी बैठे, मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में वापस चली गई, मैं भूल गई कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। नो नो नो, आई फॉरगेट एवरीथिंग। So I am in the university now, you know, right way. I am feeling like that. And मैं सभी को यही बेनती करती हूँ कि उम्र मत गिनो, अपनी कला के साथ जुड़ो और स्पिरिट पैदा करो। फॉरगेट द एज, एज डजंट काउंट। ਤੁਹਾਡੀ स्पिरिट है ਜਿਹੜੀ वाइब्रेशन ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਐਂਡ ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੈਲਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, ਭਲਾ ਮੰਗੋ। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। बिल्कुल बिल्कुल, साढ़े हमारे पास आ रही है, आपका जो वाइब्रेशन है हमारे पास आ रही है, सब व्यूअर्स के पास आ रही हैं। सतीश आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी, लेखक और संगीत नाटक अकादमी अवॉर्डी हैं, लिखते हैं लाजवाब। और मंजू वसी लिखती हैं कमाल का फील है आपकी गायकी में, वाकई। रोमी हमारे साथ जुड़ी है, रोमी शर्मा पुंछी हमारे साथ जुड़ी हैं, यानी बहुत ही खूबसूरत, गॉड ब्लेस यू। वाकई रोमी बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। डॉक्टर सल्ला मेहता कहते हैं कि मजा आ गया। सतीश आनंद लिखते हैं, जो बेहतरीन रंगकर्मी लिखते हैं, मजा आ गया, हसी हो गए सदके तेरे दे। वाह सतीश सर, कितना खूबसूरत लिखा आपने, हसी हो गए सदके तेरे दे, वाकई। और नौरीन शर्मा जी लिखती हैं एज इज जस्ट अ नंबर। आप तो वैसे ही बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत। और मैं ये यहाँ जरूर कहूंगी, इनके कॉस्ट्यूम्स, इनकी ज्वेलरी, ऑफ मैं तो उस पर सदके हुई, तो है ही बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, लेकिन इनका पहनावा, इनके दुपट्टे, इनकी ज्वेलरी, और खुद में एक बेमिसाल शख्सियत, वाकई बेमिसाल शख्सियत। अरे तो आप मेरे घर आओ, जितने लोग सुन रहे हैं जो मर्जी ले जाओ उठा के, सब ज्वेलरी आपके लिए है, सब दुपट्टे फुलकारियां आपके लिए। आप आओ तो सही, दिल बहुत बड़ा दिया परमात्मा ने, बहुत बड़ा। मिर्जा सुनना चाहेंगे आपसे? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी सुनते। जट चढ़दे मेरे जे खान नो, बई जट चढ़दे मेरे जे खान नो, वड्डी भाभी लैंदी थम, बई वड्डी भाभी लैंदी थम, वे मैं कदे ना दिओर बंगारिया बंगारिया, वे जट्टा कदे ना आयो कम। ये फिर पीछे बैकग्राउंड नहीं है ना, आप करो सारे। जे तू चलियो भुखा रिज़्क दा, वे जे तू चलियो भुखा रिज़्क दा, वे मेरियां कोठियां ले आ भन्न, जे तू चलियो भुखा दुध दा, वे मेरियां बूरियां ले आ बन्न, वे तू आखे लग मन मेरियां, हाय मेरियां बक्की मोड़ तबेले बन्न। जे तू चलियो ब्याह करवाउण नू, जे तू चलियो ब्याह करवाउण नू, जे तू चलियो ब्याह करवाउण नू, चलियो
ਚੱਲਿਓ ਚੱਲਿਓ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੀ ਲੈ ਚੱਲ ਜੰਜ, ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੀ ਲੈ ਚੱਲ ਜੰਨ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਿਆਹ ਦੇਵਾਂ, ਹਾਏ ਵਿਆਹ ਦੇਵਾਂ, ਵੇ ਜੱਟਾ ਰੂਪ ਜੱਟੀ ਦਾ धन। कभी लाइव गाएंगे ना आके। मजा आ गया, मजा थैंक आ यू। गया, बहुत थैंक यू। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मिर्जा सुनना तो वाकई अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत ही थैंक यू। खूबसूरत। जावेद थैंक यू। गिलानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत। जसकिरण जी लिखती हैं गायकी तो बा कमाल है। मैं यहाँ आपसे एक सीरियस सवाल पूछना चाहूंगी। अगर हम फोक म्यूजिक की बात करें, फोक इंस्ट्रूमेंट की बात करें, फोक ट्रेडिशनल की बात करें, तो मुझे लगता है कि ये चीजें बैक स्टेप ले रही हैं, पीछे जा रही हैं। अगर अगर शैली तभी जिंदा रहेगी जब उसके जो कलाकार हैं, जो गांव में रहते हैं, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं देखो, जब नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर में थी तो प्रमोशन भी मिली थी मेरे को एज डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम्स, एंड अब भी मैं बड़े कोसे अदारे की मैं प्रेसिडेंट हूँ इस टाइम, संस्कार भारती के जो इंडिया का ग्रुप है उसकी पंजाब की प्रधान हूँ। और मेरी यही कोशिश है, जो आपने क्वेश्चन पुट किया बहुत अच्छा है, क्योंकि जो रिमोट एरियाज में गरीब कलाकार रहते हैं, कोई फोक इंस्ट्रूमेंट भी बजाता है, कोई ढोलक बजाता है, बहुत बहुत फोक इंस्ट्रूमेंट्स है काजल जी जिनको हम लेके आ ही नहीं रही, और उनको पकड़ने की, उनको प्रमोट करने की, उनको रोजी रोटी देने की बहुत सख्त जरूरत है। अगर मैं किसी भी पोस्ट पे आती हूँ इन फ्यूचर, आई प्रॉमिस कि ऐसे कलाकारों को प्रमोट करूंगी। अब मैं कर भी रही हूँ, जितना मेरे से हो रहा है अपने बलबूते मैं कर रही हूँ, आई एम डूइंग दैट। सो ये बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फोक में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो आपके थिएटर में भी लोक कलाएं हैं ना, जो थिएटर में हास रस होता था, नकलिए होते थे, वो भी गायब हो रहे हैं, वो भी, उनको भी प्रमोट करना बहुत जरूरी है। थिएट्रिकल जड़ियां फोक फॉर्म्स ने वो भी गायब हैं। वो जो मॉडर्न थिएटर जैसे मॉडर्न सिंगिंग है वो आगे आगे, वो पुराना थिएटर भी नहीं रहा आजकल। सो फोक फॉर्म्स को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। आज की अगर हम गायक की बात करें, सिंगर्स की बात करें, वो फोक को इतना नहीं वो कर रहे हैं, कमर्शलाइज हो गई हैं चीजें, जो मुझे लगता है कि सही नहीं है। तो एक बाजार ऐसे सा है ना बन कि इसमें कल्ला सिंगर्स का कसूर नहीं है, जो हमारे ऑडियंस है, श्रोते हैं ना, वो बराबर के भागीदार है। वो गंदे गीत जो सिंगर परोस के दे रहे हैं ना, उनको हुर्रे हुर्रे करके पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। और मेरे वर्गा लोक गायक है जो अच्छा शुद्ध गाता है, उनको बहुत कम लोग सुनते हैं। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, मैं जहां भी जाती हूँ 15-15 कोई सिंगर ऐसा पंजाब का नहीं है जिसके साथ मैंने पंगा लेके गाया नहीं है। और मैं जमी हूँ वहां बोल के उनको कन्विंस करके उन पे ठोस के आती हूँ पंजाबी कल्चर, और वाह वाह करा के आती हूँ अपने दम पे। उसमें क्या काउंट करता है? एजुकेशन और कला। एजुकेशन जिसके एजुकेशन कॉन्फिडेंस पैदा करती है, आप पे कॉन्फिडेंस पैदा करती है एजुकेशन। सो दैट्स वाई मैं देखो अब भी प्रोग्राम, कोरोना में भी प्रोग्राम कर रही हूँ। किसी के पास प्रोग्राम नहीं है, मैं लाइव जा रही हूँ वहां घर से। घर में स्टेज लगता है, बहुत लोग हैं आपकी तरह जो फोक लोक गायकी को सुनना चाहते हैं, बहुत है, अभी भी है। एंड आप लोग साथ दो तो प्रिजर्व करेंगे हम फोक फॉर्म्स ऑफ इंडिया, नॉट ओनली ऑफ पंजाब। वी शुड प्रिजर्व फोक फॉर्म्स ऑफ इंडिया, टोटल इंडिया। यस, बिल्कुल बिल्कुल। सतीश आनंद जी लिखते हैं, उन्होंने एक गुजारिश की है, कुछ लाइना हीर दिया भी सुना दो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सुनाती हूँ। गल लग के बांधे हीर रोवे, ते एक ही दिताई कहर गुजार माए नी, जिन्हों लग दिए सोई जानदा ए, ते तेनू लगियां दी कीए सार माए। सो एक तो ये हीर है, एक और हीर भी है जो लोक रंग है, वो भी सुनाती हूँ, जो लोक गायकी में है। ओ डोली चढ़ दिया कहंदे मकर बना लिया हीर ने, डोली चढ़ दिया कहंदे मकर बना लिया हीर ने,
ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੋਤੀ ਜੱਟੀ ਨੇ ਖੰਡਾਇਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੋਤੀ ਜੱਟੀ ਨੇ ਖੰਡਾਇਆ। ਉਹ ਚਾਕ ਚੂਚਕਦਾ ਤੇ ਬੇਲੀ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ, ਚਾਕ ਚੂਚਕਦਾ ਤੇ ਬੇਲੀ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਦਾ। मोती चुगन बहाने कोल गड्डी दे आया। एक ये है ट्रेडिशनल हीर। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, क्या कहूँ मैं, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। रश्मिधर जी लिखती है हैट्स ऑफ टू हर एफर्ट। और नौरीन शर्मा जी लिखती हैं मुझे अपने पापा याद आ गए जो हर गेट टुगेदर में हीर गाया करते थे। वाह नौरीन जी। और नौरीन जी लिखती हैं आगे कि अगर हम फोक थिएटर की बात करें तो नट नटी सूत्रधार सब कुछ खत्म हो रहा है। बिल्कुल सही। पपेट शो होता था, पपेट शो कितना अच्छा लगता था, वो खत्म है, सारा खत्म है। हमारा जम्मू का जो फोक था, कान सखियां होती थी, हरन होता था, जागरना, ये सब चीजें पीछे पीछे जा रही हैं। आज जो फेस्टिवल्स होते थे, फेस्टिवल्स को शो करते थे, इतने थिएट्रिकली फॉर्म्स थी जो फेस्टिवल को शो करती थी, आपके ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल्स, वो भी खत्म है कहानी। So we should preserve all these things. We should collaboratively, we should do all these things, you know. हम लोगों को इकट्ठे मिलकर कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हम लोग कुछ कर सकें, और ये अकेला इंसान नहीं कर सकता, हम सबको आगे मिलकर आना चाहिए, एफर्ट जरूर करने चाहिए। प्रतिमा विरमानी जी लिखती है पंजाबी फोक का जवाब नहीं। वाकई मेरे पास लास्ट में 2 सवाल है। एक तो ये रहेगा कि जो हम न्यू जनरेशन है, न्यू परफॉर्मर है, जो इस फील्ड में या किसी भी परफॉर्मिंग फील्ड में आगे आना चाहती हैं, आप उनको क्या कहेंगे? एक तो पढ़ाई की आपने बात की कि पढ़ाई वाकई जरूरी है, कि कुछ जो नए परफॉर्मर्स होते हैं उनको लगता है कि पढ़ाई नहीं, हम कला की तरफ जाएंगे, पढ़ाई इतना जरूरी नहीं है। तो जिस तरह से आपने कहा स्टडीज, जो खुद आप अपने साथ आपने सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगी नए परफॉर्मर्स को? मैं नए परफॉर्मर्स ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆ, ਟੀਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮਰਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੋ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਆ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰ ਵੀ ਫੋਰਗੇਟ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕੀ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਆਪਦਾ ਗਾਈਡ ਲਓ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚ ਆਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਫੇਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਾਜਲ ਜੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਆ ਨਾ, ਗੇਂਦ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਦਬਾਉਣੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁੜਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਬੁੜਕਦੀ ਹੋਈ ਗੇਂਦ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सही गल है, बिल्कुल बिल्कुल सही गल। टाइम भी हमारा हो रहा है, और नौरीन जी लिखती है मस्ट डू समथिंग टू प्रिजर्व इंडियन फोक। वाकई 2 फरमाइशें और हैं, मैं चाहूंगी अगर आप पूरी कर सकें चलते चलते, या तो शिव कुमार बटालवी या फिर ससी पुन्नू, दोनों अगर सुना दे तो वाकई हमारे लिए तो ਦੋਨੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। शिव कुमार बटालवी ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਗਾਉਣੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ गुलाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, किन्नी बीती ते किन्नी बाकी है, किन्नी बीती ते किन्नी बाकी है, मैनू ए हो हिसाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, मैनू जद भी
ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਯਾਦ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਯਾਦ ਆਏ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ। ਡਾਚੀ ਵਾਲਿਆ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰ ਵੇ ਸੋਹਣੀ ਵਾਲਿਆ ਲੈ ਚੱਲ ਨਾਲ ਵੇ ਡਾਚੀ ਵਾਲਿਆ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰ ਵੇ ਸੋਹਣੀ ਵਾਲਿਆ ਲੈ ਚੱਲ ਨਾਲ ਵੇ ਤੇਰੀ ਡਾਚੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਡਾਚੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਹਾਏ ਵੇ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮਨਾਵਣ ਚੱਲੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰੀ ਡਾਚੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਵੇ ਡਾਚੀ वालिया मोड़ मुहार वे। एक फोक में भी सुन लो जो हमारा ट्रेडिशनल लेडीज कैसे गाती है सस्सी पुन्नू गांव में। जागनी माए सुतिए उठ वेखतियां दा हाल नी मारू थल दे ताड़वी मेरा पुन्नू ले गए नाल नी हाय वे पुन्नू जालमा दिलां दिया मेरे मां सुती नू छोड़ के क्यों जाना ओए ना रोतीए मेरिए नारो धीए मेरिए उठ ले चरखे दी सारनी पुन्नू जइया मूरता तैनू ले दिऊं दो ते चारनी नारो धीए मेरिए जिन्नी राही तू गयो वे मैं करा रहा दी पाल वे पुन्नू जहिया मूरता ना मिलन किसे भी हाल वे हाय वे पुन्नू जालमा दिलां दिया मेरे मां सुती नू छोड़ के क्यों जाना रुला दिया आपने। ये है असला सस्सी पुन्नू और फीलिंग के साथ गाना चाहिए, हर कलाकार को फीलिंग के साथ गाना चाहिए। सच में मतलब दिल से दिल तक आवाज पहुंची, आपके दिल से गाई हुई आवाज। नहीं तो मैं तो काजल जी गायिका समझा ही नहीं कभी अपने आप। मेरे को कोई, मैं सिंगर नहीं हूँ, मेरे से सारे कलाकार अच्छा गाते हैं। मैं तो ऐसे एक ऐसी फैमिली में उठ के ऐसे शौक था गाने का, और लोग कबूल जितना करते हैं मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ और मैं नतमस्तक हूँ, सभी को सलूट करती हूँ कि इतने ध्यान से मेरा प्रोग्राम सुना है। मैं तो नाचीज हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो सीखना है, आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखना है। मैं क्या कहूँ सुखी जी, मैं तो कुछ बोलने की कंडीशन में ही नहीं हूँ। आप इतना खूबसूरत बेहतरीन इंसान और बेहतरीन शख्सियत। वाकई लोरिन जी लिखती हैं कि नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब, भीतर तक चली गई आपकी आवाज, बिल्कुल रूह तक चली गई आपकी आवाज, वो आंखों के रास्ते छलक भी गई। बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सुखी जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत शाम का, इतनी एनरिचिंग शाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, दिल से। और मेरे ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਚੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ,
ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚੀਏ, ਆਉਂਦਾ ਸਾਲ 2021 ਚ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ, ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ, ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ नया साल। थैंक यू बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। थैंक यू सुखी जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सुभाष गुप्ता जी। वाकई सर बिल्कुल आपने सही लिखा है कि ह्यूमिलिटी थ्रू नेम इज सुखी। इट्स वेरी ट्रू एंड बिल्कुल ऐप प्रोफाउंड बात आपने कही है। सुमन पॉल जी लिखती छू गई अंदर तक, वाकई इनकी आवाज अंदर तक छू गई, क्या कहें, रूह तक पहुंच गई। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आप सभी का जो आज की शाम हमारे साथ जुड़े रहे, और आपका जुड़ना हमारी शाम को बहुत खूबसूरत बनाता है, क्योंकि ऑडियंस का रहना बहुत जरूरी होता है और हम लोगों को एक मॉरल सपोर्ट मिलती है। श्याम सुंदर कपूर जी लिखते हैं कि पंजाबी लोक गायकी का हस्ताक्षर अंतिम तो आई डोंट नो आपने लिखा है, बट हस्ताक्षर तो है। नौरीन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों का जुड़ना वाकई एक बहुत बड़ी हम लोगों को एक स्ट्रेंथ देता है। जसकिरण जी शुक्रिया, मंजू वजीर बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक जी बहुत शुक्रिया, तमाम जितने भी हमारे साथ आज की शाम जुड़े रहे, जितने भी एस्टीम व्यूअर्स जुड़े रहे, उन सभी का शुक्रिया। कल शाम हमारे साथ एक और बेहतरीन गायिका जुड़ने वाली हैं, जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है। कल जो ब्रिजमोहन जी आए थे जम्मू कश्मीर से, आपने उनके साथ वो थी, उन्होंने कुछ गाने गाए थे उनके कंपोज किए हुए। लवली चंद्रा, एक बेहतरीन आवाज उनकी, बहुत बड़ा नाम जम्मू कश्मीर के संगीत से जुड़ा हुआ। तो कल हमारे साथ होंगी लवली चंद्रा जी का शाम को 7 बजे। उनकी गायकी और उनके कला से जुड़ा हुआ जो उनका सफर होगा उसके साथ हम जुड़ेंगे, और उम्मीद करती हूँ आपकी जरूरत रहेगी हमेशा की तरह हमें मॉरल सपोर्ट देने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे शख्सियत के अगले अंक में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और शुभ रात्रि।